Hello students, welcome to this important lecture of direction cosines and direction ratios. In the last lecture हमने देखा है सब फॉर्मूले, total formula and important points on the concept of direction cosines and direction ratios. Now in this lecture we will solve some important problems of direction ratios and direction cosines for MHT CET. So see students, my first question is on the board of direction ratios and direction cosines. See the first question, if a line makes angles 135 degree and 45 degree with y and z axis respectively, then the direction cosines of the line are. So please इसके पहले का वीडियो आप ज़रूर देखिए, उसमें आपको सभी फॉर्मूले सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे और वो वीडियो अगर आप देखते हो तो क्वेश्चंस भी आप इजीली समझ पाएंगे और सॉल्व भी कर सकेंगे. सो इफ़ अ लाइन मेक्स, सी द फर्स्ट क्वेश्चन, if a line makes angles 135 degree and 45 degree with y and z axis. So angles made by the line with x axis, y axis and z axis are alpha, beta, gamma. तो यहाँ पे inclination of the line with y axis and z axis दिया है. So here angle made by the line with y axis is given as 135 degree which is beta, and angle made by the line with z axis is 45 degree which is gamma. So gamma is 45 degree and I have to find the direction cosines of the line. So our direction cosines are cos alpha, cos beta and cos gamma. Problem is very simple. So but here we have to find the alpha. First we have to find the alpha by using the relation between cos alpha, cos beta and cos gamma, that is LMN, which are the direction cosines of a line. So I have this relation cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 1. So this cos square alpha plus cos square beta is 135 degree plus cos square of this gamma is 45 degree equal to 1. So cos square alpha cos of 135 is minus 1 by root 2, तो उसका स्क्वायर होगा 1 by 2. This is also 1 by 2 equal to 1. So cos square alpha is equal to 1 by 2 plus 1 by 2 1 get cancelled 0. So cos alpha is 0. So direction cosines are cos alpha, cos beta and cos of gamma. तो डायरेक्शन कोसाइंस बनेंगे, cos अल्फ़ा तो मेरा 0 है. नाउ बीटा इज 135 डिग्री, कॉस ऑफ 135 क्या होगा माइनस 1 बाय रूट 2. गैमा है मेरा 45, सो कॉस ऑफ 45 इज 1 बाय रूट 2. सो द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन आर 0, minus 1 by root 2 and plus 1 by root 2, and this is in the last option D. So this was the question number 5 and this was the very basic question on direction cosines. So अगर अल्फ़ा बीटा गैमा डायरेक्शन एंगल्स है तो डायरेक्शन कोसाइंस आर cos alpha, cos beta and cos gamma, and the important relation is cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is 1. So this was the question number 1. Now see the next question number 2. See the next question number 2 of this lecture of problems on direction cosines and direction ratios. So इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 2, सी ऑन द बोर्ड नंबर ऑफ लाइंस इन द स्पेस मेकिंग एंगल्स पाई बाय 6 एंड पाई बाय 4 विथ एनी 2 ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से, तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस में से कोई भी दो एक्सिस से पाई बाय 6 और पाई बाय 4 एंगल्स करने वाली कितनी लाइन होगी. ओके तो इसको हम सॉल्व करते हैं. सीधा क्वेश्चन नंबर 2. सो लेट, मैं एक्स और वाई एक्सिस से एंगल्स कंसिडर करता हूँ. लेट एंगल मेड बाय द लाइन विथ एक्स एक्सिस अल्फ़ा is pi by 6 and let angle made by the line with y axis beta is pi by 4. So here beta is pi by 4. So what happens with gamma, मैं ये देखता हूँ. So again I have this relation cos square alpha is pi by 6 plus cos square beta is pi by 4 plus cos square gamma is 1. cos 30 रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर होगा 3 बाई 4. cos 45 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर 1 बाई 2 प्लस cos स्क्वायर गैमा इज 1. सो इट इज़
2 5/4, 2 plus 3 5/4 plus cos square gamma equal to 1, and this cos square gamma equal to 1 minus 5/4, so it is minus 1/4. cos 30 root 3/2, 3/4, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 2 plus 3 5/4, 1 minus 5/4 is minus 1/4, and this is the value of cos square of gamma. So square of this cos alpha is negative. So square of any real number is never negative. किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता. सो cos स्क्वायर अल्फा कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 1/4. तो ये पॉसिबल नहीं है. देयरफॉर देयर इज नो लाइन इन द स्पेस which makes an angle of π/6 and π/4 with any two of x, y and z axis. So number of lines are 0. Number of lines are 0, and this is in the option C, and this is the question number 2. Now see the next question number 3. See the third question on the board. Question number 3, and here direction cosines हमें पूछा है of a line which lies in the xz plane and makes an angle of 30 degree with z axis. Now the question is very important. इसमें आपको एक कंसेप्ट सीखने को मिलेगी. अगर कोई लाइन किसी प्लेन में है, कोऑर्डिनेट प्लेन में, xy प्लेन में, yz प्लेन में, xz प्लेन में, तो उसका रिमेनिंग एक्सेस से कितना एंगल होगा. सो कंसेप्ट इज वेरी क्लियर. हियर if these are the coordinate axes, x axis, y axis and z axis, now this total xy plane is perpendicular to z axis. xy plane is perpendicular to z axis, यानी z axis xy plane को perpendicular है, x axis yz प्लेन को परपेंडिकुलर है, और y एक्सिस xz प्लेन को परपेंडिकुलर है. तो अगर मेरी कोई लाइन xy प्लेन में होती है, सो दैट लाइन इज परपेंडिकुलर टू z एक्सिस. If a line lies in yz plane, that the line will be perpendicular to x axis. लेकिन मुझे यहाँ पे दिया है line lies in xz plane. So if the line lies in xz plane, then this line will be perpendicular to y axis. So अगर ये line xz plane में है तो ये y axis को perpendicular होगी, और inclination of the line with y axis is beta, which is equal to 90 degree. So here beta is given to be 90 degree, that is pi/2, and this line makes an angle of 30 degree with z axis. This line makes an angle of 30 degree with z axis. तो मुझे gamma कितना दिया है, 30 degree. So again we will use the relation cos square alpha plus cos square of beta. Cos square of beta, cos square beta कितना होगा, cos of 90 0 प्लस cos स्क्वायर ऑफ gamma cos 30 रूट 3/2 का स्क्वायर होगा 3/4 इक्वल टू 1. cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर gamma इक्वल टू 1. सो cos स्क्वायर अल्फा इज 1 माइनस 3/4, 1/4, और यहाँ से मुझे cos अल्फा मिलेगा प्लस माइनस 1/2, एंड आई हैव टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस. सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन आर, लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, कॉस अल्फ़ा कितना है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गैमा. सो कॉस अल्फ़ा कितना है मेरा, प्लस माइनस 1/2, कॉस ऑफ बीटा, बीटा कितना है 90 डिग्री, कॉस ऑफ 90 0, गैमा कितना है 30, कॉस ऑफ 30 इज रूट 3/2. सो वेयर इज दिस ऑप्शन, प्लस माइनस 1/2 0 रूट 3/2, प्लस माइनस 1/2 0 root 3/2, this is in the first option A. So answer A is correct. So this is the question number 3. Now see the question number 4. Next question number 4. तो इनमें इस क्वेश्चन में दिया है, this question is very important, and I think ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ चुका है. JEE को शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. CET में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अ लाइन मेक्स द सेम एंगल थीटा विथ x एक्सिस एंड z एक्सिस. सी द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड. अ लाइन मेक्स द सेम एंगल थीटा विथ x एक्सिस एंड z एक्सिस. सो x एक्सिस एंड z एक्सिस से एंगल होते हैं अल्फ़ा और गैमा. Alpha is the angle made by the line with x axis, gamma is the angle made by the line with z axis. Both are equal and both are
equal to theta, same angle है theta. Now if the angle beta which it makes with y axis is such that sin square beta equal to 3 sin square theta. Again I have given that condition, sin square beta is equal to 3 sin square of theta. So what is the value of cos square theta? So I have this relation cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 1. So here theta and alpha and gamma is equal to theta, तो ये बनेगा cos square theta plus cos square beta. एक काम करेंगे, we will use the result of sin, क्योंकि हमें sin का रिलेशन दिया है तो हमें दो रिजल्ट पता है, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 1 and sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma equal to 2. So that result we will use. Now we have this relation, हमारा कैलकुलेशन कम हो जाएगा. This is very simple method. sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma कितना होता है 2. cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma कितना होता है 1. So ये रिजल्ट हम यूज़ करेंगे. So here alpha and gamma is equal to theta. So sin square theta plus sin square beta plus sin square gamma is theta equal to 2. So here sin square beta is equal to 2 minus this 2 sin square theta. But I can write sin square beta equal to 3 sin square theta. So it is 3 sin square theta equal to 2 minus 2 sin square theta, and this is equal to 5 sin square theta equal to 2, which gives sin square theta is equal to 2 by 5, and here cos square theta is equal to 1 minus sin square theta 2 by 5. So 1 minus 2 by 5 is 3 by 5. So value of cos square theta is 3 by 5, and this is in the option A. So I have used this relation cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 1. ये भी रिलेशन करेक्ट है, वो भी यूज़ करके हमें आंसर मिल सकता है, लेकिन मुझे रिलेशन ही साइन में दिया था तो मैंने ये रिलेशन भी साइन का ही यूज किया है. सो दिस 3 फर्स्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपको भी ध्यान में रखने के हैं. cos square alpha plus alpha beta gamma क्या होने चाहिए, डायरेक्शन एंगल्स that are the angles made by the line with x axis, y axis and z axis. So first is cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 1. Second one is sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma equal to 2. Third one is cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma plus 1 equal to 0. So this is the question number 4. Now see the next question on the board. Question number 5. So in the question number 5, this is also very nice and best question. A line makes angles, see on the board, a line makes angles alpha, beta, gamma with coordinate axis. If alpha plus beta equal to 90 degree, then cos alpha plus cos beta plus cos gamma का square पूछा है. So this is the question number 5. So alpha plus beta is given to be 90 degree. Okay. और यहाँ पे मुझे बीटा को मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा. अब कॉस ऑफ बीटा क्या होगा, कॉस ऑफ बीटा क्या होगा, कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फ़ा, सो देट विल बी इक्वल टू साइन अल्फ़ा. ओके. सो अब मुझे अब ये रिलेशन पता है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1. सो दिस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1. सो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 बनेगा, 1 1 गेट कैंसिल, तो कॉस स्क्वायर गामा 0 बनेगा एंड द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ गामा इज 0. ओके. सो हियर कॉस ऑफ गामा इज 0. अब मुझे वैल्यू पूछी है कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा होल स्क्वायर. Now I have to find the value of this cos alpha plus cos beta plus cos gamma का होल स्क्वायर. तो यहाँ से मुझे क्लियर है cos gamma is 0, so this get cancel. Now this cos beta is sin alpha, cos beta is sin alpha, so it becomes sin alpha plus
cos alpha whole square. I have replaced this cos beta by sin alpha, so sin alpha plus cos alpha whole square, तो इसका स्क्वायर होगा sin square alpha plus cos square alpha 1, मिडल टर्म आएंगे 2 sin alpha into cos alpha, so 2 sin alpha into cos alpha is sin of 2 alpha, so 1 plus sin of 2 alpha is the correct answer, and which is in the first option A. So this is the solution of this question number 5. Okay, now see the next question number 6. ये तो बेसिक कंसेप्ट के प्रॉब्लम है कि आपको डायरेक्शन कोसाइंस कैसे आइडेंटिफाई करने के। अगर तुम्हें कोई 3 नंबर दिए जाते हैं एंड तो अगर आपको पूछा है कि वो 3 नंबर डायरेक्शन रेशोज है या डायरेक्शन कोसाइंस है, सो हाउ विल यू identify whether the numbers are direction ratios or direction cosines. So direction ratios are the numbers which are in proportion with direction cosines. Direction cosines are also direction ratios, but all direction ratios are not direction cosines. Direction cosines क्या satisfy करते हैं? L square plus m square plus n square equal to 1. तो वही concept हमें यहाँ पे यूज़ करने की है। Question number 6, first option, which of the following represents direction cosines of the line. So फर्स्ट ऑप्शन में मुझे दिया है 3 नंबर्स 0, 1/√2, 1/2, तो यल यम एन कंसिडर करके देखेंगे। हमें यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अगर 1 आता है तो ही यल यम एन क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस. If this is not equal to 1, then these are not direction cosines, these are the direction ratios. So here 0 plus 1/√2 का square 1/2 plus 1/4, this is not equal to 1, these are not direction cosines. Second option is 0 minus √3/2 and 1/√2, तो इसका 0 का स्क्वायर 0, इसका स्क्वायर आएगा 3/4 एंड इसका स्क्वायर आएगा 1/2. दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1. दीज आर ऑल्सो नॉट डायरेक्शन कोसाइंस. ऑप्शन सी 0, √3/2, 1/2, 0, 3/4, 1/4, 3/4 plus 1/4, 4/4, 1. So these are the डायरेक्शन कोसाइंस. सो डायरेक्शन कोसाइंस आपको कैसे आइडेंटिफाई करने के हैं? That will satisfy L square plus m square plus n square equal to 1. So this is the question number 6, very simple question. Now see the question number 7. See on the board question number 7. Question number 7 देखिए. A line makes angles alpha by 2, beta by 2 and gamma by 2 with coordinate axis. Then cos alpha plus cos beta plus cos gamma. तो अगर यहाँ पे डायरेक्शन एंगल्स ही अल्फ़ा बाय 2, डायरेक्शन एंगल्स अगर अल्फ़ा बीटा गामा हैं तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है. बट डायरेक्शन एंगल्स आर गिवन अल्फ़ा बाय 2, बीटा बाय 2 एंड गामा बाय 2. So I have this relation cos square alpha by 2 plus cos square beta by 2 plus cos square gamma by 2 equal to 1. Now we have to solve this and then I will get the value of cos alpha plus cos beta plus cos gamma. So what is the formula for cos square alpha by 2? So it is clear. This is 1 plus cos alpha by 2. 1 plus cos of theta is 2 cos square theta by 2. This is 1 plus cos beta by 2. And this is 1 plus cos of gamma by 2 equal to 1. So this 1 plus 1 plus 1, 3 plus this cos alpha plus cos beta plus cos gamma equal to 1 into 2, 2. And therefore the value of cos alpha plus cos beta plus cos gamma is 2 minus 3 minus 1. Minus 1 is the answer to this question and this is in the first option. So this was the question number 7. Very nice question, question number 7. Now see the next question number 8. See the question number 8 on the board. Question number 8.
of direction, cosines and direction ratios. All the problems are very very important. प्लीज़ सीरियसली आप इसको नोट कीजिए, सभी प्रॉब्लम्स अच्छी तरह से समझ लीजिए. दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ही क्वेश्चन सीईटी में पूछे जाते हैं, इजीली सॉल्व होते हैं, काफ़ी कम टाइम में सॉल्व करना पड़ता है, तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम सीईटी एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं. सो नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 8. And in this question I have to find question number 8 on the board. Direction ratios of a line perpendicular to the lines whose direction ratios are 3 minus 2 1 and 2 4 minus 2. So I have these two lines और इन दोनों लाइंस के मुझे डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं 3 माइनस 2 1 एंड 2 4 माइनस 2 and I have to find a line which is perpendicular to both the lines. विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन्स. तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज क्या होंगे? डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस टू लाइन्स हैविंग डायरेक्शन रेशोज दिस 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 एंड दिस दिस दिस. तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज 3 माइनस 2 1 है, तो इस लाइन का वेक्टर मैं ए कंसिडर करता हूँ. इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज ए है, तो इस लाइन का वेक्टर मैं बी कंसिडर करता हूँ. और ए वेक्टर और बी वेक्टर को परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है? ए क्रॉस बी. तो क्रॉस प्रोडक्ट से हमें परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशोज मिल सकते हैं. सो आई हैव टू फाइंड जस्ट द वेक्टर ए क्रॉस बी. प्लीज़ सी द प्रोसीजर. कभी भी आपको परपेंडिकुलर लाइंस के डायरेक्शन रेशोज पूछते हैं तो टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट यू विल गेट द डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन टू लाइन्स. सो बाय जस्ट टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट of these two vectors a and b components 3 minus 2 1, यही डायरेक्शन रेशोज है, तो डायरेक्ट ये वेक्टर क्या होगा? 3i माइनस 2j प्लस के. नोट में देखिए मैंने लिख के दिया था, इफ़ a1 a2 a3 आर डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाइन देन द वेक्टर a1i प्लस a2j प्लस a3 के इज अलॉन्ग द लाइन. और यूनिट वेक्टर का रिलेशन क्या है? इफ़ एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन देन यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द लाइन इज एल आई प्लस एम जे प्लस एन के. डायरेक्शन रेशोज से वेक्टर मिलेगा, डायरेक्शन कोसाइन से यूनिट वेक्टर मिलेगा. दिस टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने के. एंड वेक्टर अलॉन्ग दिस लाइन इज बी बार 2i प्लस 4j माइनस 2 के. सो हियर कंपोनेंट्स आर 2 4 माइनस 2. सो फाइंड दिस क्रॉस प्रोडक्ट. 4 माइनस 4 क्या होगा? 0. सो इट इज 0i माइनस 6 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 प्लस 8 हो जाएगा प्लस 8j और 8 12 प्लस 4 16 की. सो द डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू these two lines are 0 8 16 and 0 8 16 is 0 1 2. 0 1 2 इसका ऑप्शन है, ऑप्शन बी. ओके, अब इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं. परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है? व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 आए तो लाइंस परपेंडिकुलर होगी. इफ़ दिस इज़ a1 b1 c1 एंड इफ़ दिस इज़ a2 b2 c2 0 आता है कि नहीं चेक करेंगे. सो a1 a2 3 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 प्लस 1 इंटू 2 2 कितना आएगा? 0. यहाँ पे भी चेक कीजिए. 2 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 1 इज प्लस 4 माइनस 2 इंटू प्लस 2 माइनस 4, ये भी कितना आएगा? 0. सो टू फाइंड द लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन टू लाइन्स हैविंग डायरेक्शन रेशोज a1 b1 c1 a2 b2 c2 is obtained by cross product a cross b. Okay students, so this was the question number 8. Now see the next question number 9. इसमें मुझे एंगल फाइंड आउट करने का है और डायरेक्शन रेशोज गिवन है. फॉर्मूला मैंने आपको बोला था, एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइंस हैविंग डायरेक्शन रेशोज a1 b1 c1 a2 b2 c2 इज गिवन बाय cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाय रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर. तो वही फार्मूला मैं इसमें यूज़ करूँगा. सो इन क्वेश्चन नंबर 9 डायरेक्शन रेशोज a1 b1 c1 and direction ratios a2 b2 c2 are given 1 1 2 and here the direction ratios are root 3 minus 1 minus root 3 minus 1 and 4. ओके, तो अब मुझे
कॉस ऑफ थीटा फार्मूला यूज़ करने का है। फार्मूला मैं लिखूंगा नहीं, मैंने आपको फार्मूले के लेक्चर में बोला था। कॉस थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। सो लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन दिस टू लाइन्स। सो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू a1 a2 कितना होगा √3 माइनस 1 दिस इंटू दिस प्लस b1 b2 कितना होगा -√3 माइनस 1 प्लस c1 c2 4 इंटू 2 8 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 4 कितना होगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 √6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, अब इसका स्क्वायर होगा 3 माइनस 2√3 प्लस 1, इसका स्क्वायर लीजिए माइनस कॉमन लेके ये बनेगा 3 प्लस 2√3 प्लस 1 एंड स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। ओके, सो ये कैलकुलेशन सिर्फ आपको अच्छी तरह से करने का है। सो आप कॉस ऑफ थीटा देखिए प्लस √3 माइनस √3 कैंसिल 8 माइनस 2 ऊपर आएगा 6, ये √6 ये माइनस 2√3 प्लस 2√3 कैंसिल 4 प्लस 4 8 और ये 16 24 इज 2√6 और 2√6 यानी √6 6 कैंसिल 1/2। कॉस ऑफ थीटा अगर 1/2 है तो थीटा कितना होगा 60 डिग्री। सो 60 डिग्री is the answer to this question and the answer is C. So this was the question on the angle between the two lines. Next question देखिए, question number 10. Question number 10 on the board of direction cosines and direction ratios. तो इसमें दिया है if the line joining the points A and B is perpendicular to the line joining the points C and D, then I have to find the value of K. ओके, ए और बी पॉइंट में लिख लेता हूँ। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट से 7 8 6, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखिए, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट से 9 11 7, सी पॉइंट दिया है मुझे 9 1 K एंड डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट से 7 2 5। सो हियर ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, तो ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी है। सो आई विल फर्स्ट फाइंड द डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए बी एंड देन आई विल फाइंड द डायरेक्शन रेशोज ऑफ सी डी। डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 points x1 y1 z1 and x2 y2 z2 is given by x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1. So x2 minus x1 9 minus 7 2, 11 minus 8 3, 7 minus 6 1. Now direction ratios of CD, x2 minus x1 7 minus 9 minus 2, 2 minus 1 1 minus 5 minus k. So this is a1 b1 c1, this is a1 b1 c1, this is a2 b2 c2. Here AB is perpendicular to CD, therefore a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 क्या होगा 0। सो a1 a2 देखिए 2 इंटू -2 -4 प्लस b1 b2 प्लस 3 प्लस c1 c2 1 into this is -5 minus k equal to 0. So it is -1 -1 -5 -6 इक्वल टू k, तो k की वैल्यू मिलेगी मुझे -6 एंड दिस इज इन द लास्ट ऑप्शन डी। सो कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, ये इसको आप ध्यान में रखने का है। परपेंडिकुलर लाइंस है तो a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0. If the lines are perpendicular, a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. Direction ratios are in proportion. So this was the question number 10 and now the next question number 11. See the question number 11 on the board, and this question number 11 is also very simple, very easy question. Question number 11. क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अ लाइन पासेस थ्रू दिस 2 points 6 -7 -1 एंड 2 -3 1 इफ द एंगल अल्फा विच द लाइन मेक्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एक्यूट। एक्स एक्सिस से किया हुआ एंगल एक्यूट है। सो एक्स एक्सिस से किया गया एंगल अल्फा होता है, अगर वो एक्यूट है तो कॉस अल्फा पॉजिटिव होगा, कॉस अल्फा पॉजिटिव होगा, तो पहला डायरेक्शन रेशो भी मुझे पॉजिटिव लेने का है, पहला डायरेक्शन कोसाइन पॉजिटिव लेने का है। कॉस अल्फा इज पॉजिटिव, अल्फा इज एक्यूट। सो
my first point is 6, let this point is a 6 minus 7 minus 1, let another point b has coordinates 2 minus 3 1। तो इसके पहले मैं डायरेक्शन रेशोज फाइंड आउट करूँगा। डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए बी 2 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 7, ए बी माइनस 4 होगा, माइनस 3 प्लस 7 प्लस 4 एंड 1 प्लस 1 2। ओके, तो डायरेक्शन रेशोज मुझे मिलेंगे 4 माइनस 4 से ही डिवाइड करें क्योंकि ये मुझे पॉजिटिव रखने का है। सो प्लस 1 माइनस 1। ओके, तो इसे मैं माइनस 2 से डिवाइड करता हूँ, माइनस 2 से डिवाइड करता हूँ, प्लस 2 माइनस 2 माइनस 1, प्लस 2 माइनस 2 माइनस 1। दीज आर द डायरेक्शन रेशोज। एंड डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगी? व्हाट विल बी द डायरेक्शन कोसाइंस? अगर डायरेक्शन रेशोज ए बी सी है तो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं ए बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी? रूट ऑफ 4 प्लस 4 प्लस 1 3। सो 2/3 माइनस 2/3 माइनस 1/3। As the angle made by the line with x is positive, this should be positive। ये पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि ये cos अल्फ़ा है, ये cos बीटा है और ये cos गामा है। सो दिस शुड बी पॉजिटिव क्योंकि अल्फ़ा कैसा है? एक्यूट है। सो 2/3 माइनस 2/3 माइनस 1/3। एक बार हम फिर से चेक करेंगे। 6 माइनस 7 माइनस 1, 2 माइनस 3 1, 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 2 4, माइनस 7 प्लस 3 बिकम्स माइनस 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2। तो ये बनेगा माइनस 4 4 2 और ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। तो इट इज़ राइट। 2/3 माइनस 2/3 माइनस 1/3, 2/3 माइनस 2/3 माइनस 2/3 माइनस 1/3। ओके, दिस इज इन द फर्स्ट ऑप्शन। मैं ऑप्शन ढूंढ नहीं पाया जल्दी। ला फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 12। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सॉरी दिस इज 11। अब 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए। दैट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12 of the direction cosines and direction ratios. So all the problems are very very important. Students please इस प्रॉब्लम को नोट कीजिए। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ओ पी विच इज़ इंक्लाइन टू ओ एक्स यानी एक्स एक्सिस से किया गया है इंक्लिनेशन 45 टू ओ वाई यानी वाई एक्सिस से 60। सो मेरा अल्फ़ा है यहाँ पे 45 और वाई एक्सिस के साथ का इंक्लिनेशन कितना है? 60 डिग्री। मैं गामा निकाल लूँगा। ओ पी यानी मैग्नीट्यूड दिया है 12 और मुझे उस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर पूछा है यानी आई हैव टू फाइंड द ओ पी वेक्टर। आई हैव टू फाइंड द ओ पी वेक्टर। सो ओ पी वेक्टर मुझे मिलेगा मॉड ऑफ ओ पी इंटू यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर अगर डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन है तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। फिर एल एम एन, ये एल एम एन क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। सी द फॉर्मूलेज केयरफुली। ओके, अगर एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस है तो यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन इज एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। सो यूजिंग दिस फार्मूला आई हैव टू फाइंड दिस वेक्टर ओ पी। सो हियर अल्फ़ा एंड बीटा इज गिवन। तो मैं फार्मूला यूज़ करूँगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कॉस स्क्वायर 45 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1/4। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। 1/2 स्क्वायर इज़ 1/2, 1/2 स्क्वायर इज़ 1/4। सो यहाँ पे कॉस स्क्वायर गामा मिलेगा 1 माइनस 3/4, ये बनेगा 1/4। कॉस ऑफ गामा मिलेगा प्लस माइनस 1/2। तो मेरे डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन क्या हो गए? एल एम एन क्या हो गए? कॉस अल्फ़ा, ये कॉस अल्फ़ा है, कॉस अल्फ़ा 1/2। ये यम यानी कॉस बीटा, कॉस बीटा कितना है? 1/2।
n यानी कॉस ग्यामा, ये कॉस ग्यामा है, कितना है प्लस माइनस 1/2। सो ओपी वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना दिया है 12, ओपी इक्वल टू 12 दिया है क्वेश्चन में, इनटू अब एल आई वेक्टर मिलेगा 1/√2i, एम जे वेक्टर मिलेगा प्लस 1/2j प्लस एन के इज प्लस माइनस 1/2k। ओके, तो इसे सॉल्व करने का है तो ये बनेगा 12/6 6√2 6√2i प्लस 6j प्लस माइनस 6k, और ये होगा 6 इंटू √2i प्लस j प्लस माइनस k। अब देखिए ये कौन से ऑप्शन में मुझे मिलता है, इन द फर्स्ट ऑप्शन। सो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिए, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, अगर डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट है तो यूनिट वेक्टर अराउंड द लाइन इज एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 12 एंड नाउ आई विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। सी द क्वेश्चन नंबर 13 ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है डायरेक्शन रेशोज। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। coordinates of a point at a distance of r units from point x1 y1 z1। ओके, फ्रॉम पॉइंट x1 y1 z1, r यूनिट्स पे अगर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन एलियन होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13। ओके, तो ये मेरा पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं क्वेश्चन में 415। क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए बी आर -2 to 1 इफ़ ए एज 415, लेंथ ऑफ ए बी 6, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड आउट करने के। तो ये मेरा बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड आउट करने के, और यहाँ की लेंथ कितनी दिए हैं, लेंथ ऑफ ए बी कितना दिया है 6। सो दिस इज़ आर, दिस पॉइंट इज x1 y1 z1, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। अब डायरेक्शन रेशोज क्या दिए हैं, डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए बी के डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए बी क्या दिए हैं, -2 to 1। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी क्या होंगे, -2/3 प्लस 2/3 1/3, रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c² से डिवाइड करने का है। सो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 प्लस माइनस एल आर, प्लस माइनस क्यों है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस -2/3 प्लस 2/3 -2/3 -1/3 भी ले सकते हैं। सो देयरफॉर टेकिंग प्लस माइनस साइन, x1 प्लस माइनस एल आर प्लस y1 प्लस माइनस एम आर z1 प्लस माइनस एन आर। ओके, तो मेरा x1 यहाँ पे 4 है, प्लस माइनस l कितना है -2/3 इंटू ये डिस्टेंस कितना है 6, लेंथ ऑफ ए बी आर कितना है 6, y1 कितना है 1 प्लस माइनस 2/3 इंटू 6, z1 इज 5 प्लस माइनस 1/3 इंटू 6। तो यहाँ पे बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, इसको एक स्टेप में सॉल्व कर लेता हूँ। 4 प्लस माइनस ये होगा -4, 1 प्लस माइनस ये होगा 4, 5 प्लस माइनस 2। तो यहाँ से मुझे बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे, तो 2 पॉइंट मिलेंगे, एक पॉइंट प्लस साइन से मिलेगा, एक पॉइंट माइनस साइन से मिलेगा, क्योंकि इधर के साइड में भी एक पॉइंट बी ऐसा होगा, उसका भी डिस्टेंस ए पॉइंट से कितना होगा 6। सो इसके कोऑर्डिनेट्स प्लस साइन से मिलेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस साइन से मिलेंगे। सो बाय टेकिंग प्लस साइन 4 - 4 कितना होगा 0। अब यहाँ पे माइनस साइन लेंगे, 4 + 4 कितना होगा 8। अब यहाँ पे प्लस साइन लेंगे तो 5, माइनस साइन लेंगे तो -3, प्लस साइन लेंगे तो 7, माइनस साइन लेंगे तो 3। सो कौन से ऑप्शन में करेक्ट दिया है, 0, 5, 7 तो नहीं दिख रहा है, 8 - 3 3, 8 - 3 3। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट गिवन ऑप्शन में ये दिया है 8 - 3 3। सो दिस इज इन द सेकेंड ऑप्शन। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 13। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14।
Okay, so these last two problems are very important. Last two problems are very important. Angle between the lines whose direction cosine satisfy this equation L plus n equal to 0 and L square equal to m square plus n square. If the direction cosines of line, ये दो रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं तो उन दो लाइंस का एंगल क्या होगा. ओके, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं. फर्स्ट इक्वेशन देखिए मेरा, L प्लस n इक्वल टू 0. सेकंड इक्वेशन है L स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर. तो यहाँ से मैं L की वैल्यू, L या m या n कोई भी एक फाइंड आउट कर लीजिए. किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी की है तो इट इज़ बेटर टू फाइंड L. तो L बनेगा -m यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा. सो -m का होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर. सो m स्क्वायर गेट कैंसल, 2mn इक्वल टू 0. तो मुझे यहाँ से mn क्या कितना मिलेगा, 0. सो mn अगर 0 है तो यहाँ से मुझे दो केसेस मिलेंगे, आइदर m इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 0. ओके, अगर m इक्वल टू 0 है, m इक्वल टू 0 है तो l कितना मिलेगा, -n. ओके, अगर n 0 है तो l क्या मिलेगा, -n. अब मुझे फाइंड आउट करने का है डायरेक्शन रेशोज. सो डायरेक्शन रेशोज आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ डायरेक्शन कोसाइन. सो L इज टू m इज टू n. तो यहाँ पे L लिख लेता हूँ. m तो 0 है और n इक्वल टू -l लिख सकता हूँ. ये L एज इट इज, m 0, n इक्वल टू -l. फिर से देखिए, मैंने L पहले लिख लिया, m 0 है लेकिन n क्या होगा, -l. तो डायरेक्शन रेशोज क्या मिले मुझे, डायरेक्शन कोसाइन से कौन सी किस नंबर के प्रोपोर्शन में है, 1 0 -1. ओके, सो दीज आर द डायरेक्शन रेशोज ऑफ फर्स्ट लाइन. अब सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशोज देखेंगे. तो पहले मैं L लिख लेता हूँ और m क्या है, -l. L क्या है, -l. ये L, m क्या है, माइनस और n क्या है, 0. तो यहाँ से डायरेक्शन रेशोज क्या मिलेंगे, 1 -1 0. ओके, फिर से देखिए L एज इट इज, m लिखने का है, m -l है और n कितना है, 0. अब cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू a1 a2 1 प्लस b1 b2 0 प्लस c1 c2 0 बाय स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर. a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर कितना आएगा, √2 इंटू रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर. ये भी कितना आएगा, √2. तो ये होगा 1/2. थीटा कितना होगा, 60 डिग्री यानी π/3. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, सो ये प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है. इस टाइप का क्वेश्चन CET में पूछा जा सकता है एंड JEE में आई थिंक ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है. सो इस टाइप के क्वेश्चंस के भी आप प्रैक्टिस कीजिए. मैंने 2 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ इस टाइप के. इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसमें थोड़े कैलकुलेशंस है. सो सी दैट क्वेश्चन नंबर 15. सो उसमें थोड़े कैलकुलेशंस हैं तो हम थोड़ा शॉर्ट स्पेस में उसका करेंगे क्योंकि हमें इधर के साइड में क्वेश्चन भी देखने का है. सीधा क्वेश्चन नंबर 15 सेम टाइप का है. एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइन्स LMN सेटिस्फाई दिस टू इक्वेशंस 5L प्लस m प्लस 3n इक्वल टू 0. 5L प्लस m प्लस 3n इक्वल टू 0. तो मैं यहाँ से m लिख लेता हूँ. इट इज़ बेटर टू फाइंड m हियर. तो यहाँ से m क्या मिलेगा मुझे, -5L माइनस 3n. अब मेरा दूसरा इक्वेशन क्या है, 5mn सी ऑन द बोर्ड -2nl प्लस 6lm इक्वल टू 0. अब m इसमें सब्स्टिट्यूट करूँगा, यहाँ पे m है, यहाँ पे m है, इसको सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये 5n इंटू m कितना है मेरा, -5L माइनस 3n माइनस 2nl एज इट इज़ प्लस 6l. m कितना है, -5L माइनस 3n इक्वल टू 0. ओके, तो ये बनेगा -25nl माइनस 25, बस ठीक है मैं लिख लेता हूँ, -25nl माइनस 15n स्क्वायर माइनस 2nl माइनस 30l स्क्वायर
माइनस 18 Ln इक्वल टू 0। ओके, तो ये है 15n², ये है -20 -25 -45 या +45 Ln, एंड दिस इज +30 L²। तो ये बनेगा n² + 3nL + 2L²। 15 से डिवाइड किया है इक्वेशन को, तो यहाँ से मुझे मिलेगा n² + 2nL + nL + 2L² इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर रहा हूँ, तो यहाँ से n कॉमन लेके n + 2L + L कॉमन, n + 2L इक्वल टू 0। तो यहाँ से n + n इंटू n + 2L इक्वल टू 0। ओके, तो अब मुझे यहाँ पे n इक्वल टू -L भी मिल सकता है, n इक्वल टू -2L भी मिल सकता है। तो आप प्लीज़ यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए। मैं फिर से इसी स्टेप को आप यहाँ से सॉल्व करूँगा। ये कैलकुलेशंस आप प्लीज़ देख लीजिए मैं यहाँ तक कैसा आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो मेरा क्वेश्चन है, मुझे इसी साइड पे लिखने का है। सो आई विल रब दिस स्टेप्स। ये स्टेप्स मैं अब मिटाने जा रहा हूँ। ओके, अब देखिए मेरा पहला केस बनता है n + L इक्वल टू 0, यानी n इक्वल टू -L, और यहाँ से n + 2L इक्वल टू 0, यानी n इक्वल टू -2L। ओके, नाउ अब मुझे डायरेक्शन रेशोज़ कैसे फाइंड आउट करने के हैं। अब जब n इक्वल टू -L है तो मेरा m क्या बनेगा, m इक्वल टू n को मुझे लिखने का है -L, तो +3L हो जाएगा, -5L + 3L -2L हो जाएगा। अब यहाँ से m क्या मिलेगा, n को मुझे लिखने का है -2L, तो ये +2L हो जाएगा। n इज +6L हो जाएगा, +6L -5L, तो m इक्वल टू L बनेगा। n इक्वल टू -2L, सो +6L, 6L -5L इज L। ओके, अब देखिए ये तो इजी है, L m n, L एज इट इज़, m क्या है, L है, तो m इक्वल टू L लिखेंगे, और n क्या है -2L। L एज इट इज़, m लिखने का था बट m इक्वल टू L, अब n लिखने का था बट n इक्वल टू -2L, तो यहाँ से डायरेक्शन रेशोज़ मिले 1 1 -2। गॉट इट। नाउ हियर अब मैं लिखता हूँ L m n, L एज इट इज़, L को लिखता हूँ मैं L को लिखता हूँ m अपॉन -2, L एज इट इज़, m कितना है, सॉरी L एज इट इज़, m कितना है -2L, और n क्या है -L। L एज इट इज़, अब m लिखने का था, m क्या है -2L, अब n लिखने का था, n क्या है -L। तो यहाँ से डायरेक्शन रेशोज़ 1 -2 -1, A1 B1 C1 A2 B2 C2, and here is my angle cos of theta equal to A1 A2 A1 A2 1 plus B1 B2 minus 2 plus C1 C2 plus 2 by root of A1 square plus B1 square plus C1 square root of 6 into root of A2 square plus B2 square plus C2 square root of 6। सो ये बनेगा 1/6। तो थीटा कितना बना, cos इनवर्स of 1/6 is the angle between these two lines। so ये this was the question number 15 14 और 15 के अब और क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। दैट प्रॉब्लम मुझे लगता है ये CET एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम्स, दिस आर द प्रॉब्लम्स ऑन डायरेक्शन रेशोज एंड द डायरेक्शन कोसाइंस। इसके पहले के लेक्चर में मैंने सभी फॉर्मूले, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझाए हैं, तो आप उन फार्मूलेस को भी नोट कीजिए, इन प्रॉब्लम्स को भी देखिए, उसमें के बहुत सारे रिजल्ट्स पे प्रॉब्लम नहीं आए हैं। सो उन रिजल्ट्स को भी आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। सो दिस वाज द लेक्चर ऑन द प्रॉब्लम्स ऑन डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोज फॉर MHT CET। इन द नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स हम लाइन टॉपिक के फार्मूलेज
डिस्कस करेंगे। लाइन एंड प्लेन अभी बाकी है और ट्रिग्नोमेट्री भी हमारा बाकी है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लाइन्स। ओके स्टूडेंट्स, बाय।